अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको खुशामदीद। जो तमाम लोग जिन्होंने बैटल ऑफ द बुल्स में पार्टिसिपेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की और आज हमारे साथ मौजूद है इस वेबिनार में, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि वेबिनार इस पार्ट बैटल के अंदर कंप्लीट किस तरह से करना है। जो हमने टूल आपको प्रोवाइड किया है वो किस तरह से लॉग इन किया जाएगा, कैसे यूज किया जाएगा। इसके अलावा बाकी टेक्निकलिटीज भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको सब चीज़ों की गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करेंगे। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जो मौजूद हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हमने उनको इसलिए इनवाइट किया है ताकि हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा जान लें बिफोर वी गेट इनटू द कॉन्टेस्ट इटसेल्फ। ठीक है, आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग के बारे में अंदाजा हो जाए, थोड़ा सा ये पता चल जाए कि प्रोडक्ट्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन सी हैं। जिसमें कुछ चीज़ों में सर फहरिस्त जो है वो आपका ईटीएफ्स हैं, जिसके बारे में हम कुछ बात करना चाहेंगे आज, क्योंकि बैटल ऑफ द बुल्स में ईटीएफ खरीदने के लिए भी ऑप्शन मौजूद है, जो कि एक काफी लुक्रेटिव ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, क्यों मेक द राइट डिसीजन। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन देता चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है जवाद आजमी साहब, द चीफ मार्केट ऑपरेशंस ऑफिसर एट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। Then we have Amanullah Khan from the products department. He is the manager of strategy. And we have Rahil Ahmed Khan Saab, who is the manager of web and digital transformation. इसके साथ हमारे साथ है महा कासिम, हु इज द वीपी स्टॉक इंटेल। जिस प्लेटफॉर्म के बारे में हमने आपसे पहले भी जिक्र किया कि आप रिसर्च के लिए इसको यूज कर सकते हैं। प्रीमियम अकाउंट आपको फ्री में दिया जाएगा ड्यूरिंग दिस कंपटीशन, उन लोगों को एक्सक्लूसिवली जो इस बैटल का पार्ट है। और इन तमाम हजरात के अलावा मैं अब मोडरेट करूंगा इस सेशन को। मेरा नाम है फहद आसिफ, मैं सीनियर मैनेजर डिजिटल मीडिया एंड फाइनेंशियल लिटरेसी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पार्ट हूँ। So, without anything else, I think we should just get going. Sir Jawad Sahab, please, if you may begin the conversation. Thank you very much, and a very warm welcome to all the participants जिन्होंने register किया. I'm just reading a message that I'm not audible. If I am, please write a message again so that we can start. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. So, as Fahad Saab was introducing, my name is Jawad Hashmi and I look after the market operations. I believe the most exciting part of the overall stock market, where there's never a dull moment. So it's always the action. Yeah. So I would request somebody to just keep a track of the messages so that we concentrate on the talk. As we all know, the stock market, why does it exist at the first place? किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए या उसको enhance करने के लिए we we have two sources of financing. One, of course, which is quite familiar and popular and everybody is well aware, that is you go to the market, you go to the banks actually, you go to the banks and seek a loan. For loan, of course, the bank needs the collateral and offers you a loan which you owe to the bank, and whether business does well or it doesn't doesn't do that great, you need to pay up those funds back to the bank. The other way to raise the finances is the equity, जहाँ पे स्टॉक मार्केट में आप अपने आइडिया को, अपनी प्रोडक्ट को, अपने proposition को investors के सामने present करते हैं, and you raise the money from the market. We call it the equity. Equity, contrary to the debt, equity gives you the ownership in the business. Once the money is raised, it is made available in the secondary market. Yeah, in the secondary market, where the shares are freely available for buying and selling. The prices go up or down, and that's where your decision of investment really matters. Value the stock well, using all your learnings from your finance courses, जिसमें आपके पास दोनों तरह की technical analysis and more importantly the fundamentals of any business that should be well understood
for you to make the right decision. And in this competition, that's what is going to be tested. That how good you are in your I don't know if there are any messages you can look after, because that I should continue. Sir, आप please continue कीजिए, Q&A हम आखिर में ठीक address करेंगे. ठीक. So जैसे मैं बता रहा था कि once these stocks are available at the stock exchange, then they are freely available to trade, buy and sell. इस कंपटीशन का मकसद भी यही है कि आप को एक मौका दिया जाए कि आप वर्चुअल मनी के साथ अपने पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करें, अपनी उन तमाम लर्निंग्स की बेसिस के ऊपर जो आपने अपने फाइनेंस कोर्सेज के अंदर पढ़ी हैं, और उसके बाद आफ्टर द क्लोजर ऑफ द कॉन्टेस्ट पीरियड we will evaluate how did your portfolio, how did it go, और उसके बाद you will get to know more details about the competition and the system for its usage and stuff. So that's more or less. Now there are certain rules which are applicable in this, we call it the secondary market, the trading. Stocks का तो मैंने आपको बता दिया. इसकी जितनी भी फीड है, रेट्स क्या आ रहे हैं फॉर ईच कंपनी, you'll be shown the website also, the data portal services of Pakistan Stock Exchange, where you can track the prices of your investment and how is it performing. So I would suggest that you study well the stock, the industry, and the movement of shares and the performance of that company in terms of financials. Also look at the previous reports, which are also available at the data portal of Stock Exchange in the respective companies section. और उसके बाद I'm seeing some interesting comments in the chat. So I would love to comment on that as a reply, but in a short while. Market में जब आप ट्रेड करते हैं तो there are you see the three codes. One is the bid price, where somebody is ready to buy, an offer where the seller wishes to sell, and the last trade price, which means the price at which the last trade got executed. So you have now two choices. If you want to buy it straight from the offer, right? For instance, if a stock is being quoted at 100 rupees, 100 रुपए के ऊपर buyer है और 101 रुपए के ऊपर seller है, so you have two choices. Either you buy it at 101 from the seller, or you get your order queued in the market for it to meet the price जो आपने रखा है, अपना जो target आपका price है, so you can wait. मार्केट की सो इस तरह के ऑर्डर को जो हिट ऑर्डर होता है, जो रेडीली अवेलेबल ऑफर को आप ले रहे हैं या रेडी अवेलेबल बिड को आप बेच रहे हैं, इसको हम मार्केट ऑर्डर कहते हैं. और जो दूसरी फॉर्म है मार्केट की, उसको हम लिमिट ऑर्डर की जो टाइप है उसको हम लिमिट ऑर्डर कहते हैं. ठीक है जी. स्टॉक प्राइसेस को क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? जैसे मैंने बताया, एक तो कंपनी की परफॉर्मेंस होती है, जो सबसे पहले किसी भी शेयर्स के उसके कीमत में उतार चढ़ाव, जाहिर है वो उस कंपनी की परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है. तो जैसी कंपनी परफॉर्म करती है वैसे ही उसके स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्शन होता है. Next, we'll move forward towards Mr. Amanullah, who is with the product department, Pakistan Stock Exchange. Aman, I would like you to share your presentation so the participants can see and learn a few things about the products that Pakistan Stock Exchange is currently offering. Thank you. Assalamu alaikum everyone. Thank you Jawad sir for the presentation. आपने अच्छी डिटेल बता दी है. बस प्रोडक्ट्स के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि प्रोडक्ट्स की डिटेल क्या क्या चीज़ें प्रोडक्ट्स में हमारे पास अवेलेबल हैं
और स्पेशली हम फोकस होगा हमारा ETFs की साइड पे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के, उसके बारे में थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल होगी, और उसके अलावा जर्नलाइज प्रोडक्ट्स के बारे में होगी जो जो PSX पे अवेलेबल है. Products are available in two type of categories, that is tradable products and information products. We will focus more on the tradable as well as information products, but first of all about the information products. इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स में जैसे आप देखते हैं रोज इंडेक्स के बारे में, स्पेशली KC 100 इंडेक्स में बहुत लोगों का फोकस होता है कि KC 100 इंडेक्स किस तरह मूव कर रहा है. तो इसी तरह हमारे पास टोटल जो अवेलेबल इंडेक्सेस हैं वो 17 इंडेक्सेस हैं एज ऑफ नाउ, जिसमें से 4 जो है इस्लामिक इंडेक्सेस हैं और 9 जो है ETF रिलेटेड इंडेक्सेस हैं. आउट ऑफ दीज 9 इंडेक्सेस 8 आर इक्विटी बेस्ड इंडेक्स और एक जो है हमारा डेट बेस्ड इंडेक्स है. इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट में हमारी दूसरी प्रोडक्ट जो है वो डेटा वेंडिंग की प्रोडक्ट है, लेकिन वो ऐसा जो है डेटा रिलेटेड है, वो आपको अगर लाइव डेटा चाहिए. और उसके अलावा जो हमारी दूसरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें रेगुलर मार्केट में Aman, जैसे I'm sorry I'm डिस्कस. cutting you off. I'm not जी able जी. to see the particular slide that we are discussing. Can you please move to the slide that we're talking about? आप दिख रही है? No, I think we are not able to. Can you please just maybe just close the presentation and replay it? अब दिख रही है मुझे, but अभी भी full screen नहीं show हो रहा. If you can on the top, if you can press the slideshow button on Yes. the top left. I hope वो आप उससे full screen कर पाएं. जी जी. अब आ रही है फुल स्क्रीन? नहीं आ रही, but we can see the screen. Please continue. Thank you. ठीक. तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं टोटल जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो अभी डिस्कस हो चुकी हैं रेडी और रेगुलर मार्केट में, जो क्या बोलते हैं रेडी मार्केट में अवेलेबल है मेन और जेम बोर्ड की. उसके अलावा दूसरी फ्यूचर्स रिलेटेड प्रोडक्ट है अच्छा जिसमें अमान, DFC. एक स्लाइड पीछे जाएंगे आप प्लीज, इफ यू डोंट माइंड. अभी आई कैन सी द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. इफ यू कैन गो अ लिटिल बिट बैक, पिछली वाली स्लाइड पे जाइएगा काइंडली. जी, इस पे प्लीज क्लिक कीजिएगा. असल में ये फुल स्क्रीन पे मेरे ख्याल में वो नाउ आई कैन नेक्स्ट सी. नहीं होगा. नाउ आई कैन सी द. प्लीज कंटिन्यू. थैंक यू. ठीक. ठीक है, तो इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं. ETF रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हमारी शरिया इक्विटी हैं, कन्वेंशनल इक्विटी में भी अवेलेबल है और कन्वेंशनल डेट में भी हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं. हमारे जो इंडेक्सेस हैं उसमें हमारे पास जो सारे इंडेक्सेस हैं उसमें एक सेकंड टाइप, आप यहाँ पर 2 तरह के इंडेक्सेस होते हैं, एक टोटल रिटर्न इंडेक्स है और एक प्राइस रिटर्न इंडेक्स है. जो KC 30, BKTI और OGTI इंडेक्स है, ये प्राइस रिटर्न इंडेक्स है, और जो उसके अलावा है वो टोटल रिटर्न है. इसमें बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि टोटल रिटर्न में डिविडेंड इनकॉर्पोरेटेड होता है, लेकिन प्राइस रिटर्न में ओनली प्राइस मूवमेंट्स और एक्सक्लूडिंग डिविडेंड सारी कॉर्पोरेट एक्शन इनकॉर्पोरेट हो रहे होते हैं. तो मेन जो फैक्टर होता है जो प्राइस और टोटल रिटर्न को डिफरेंशिएट करता है वो बेसिकली डिविडेंड है. और हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारा आजकल फोकस है कि शरिया प्रोडक्ट्स की तरफ हम चल रहे हैं. तो शरिया मार्केट के बारे में मैं कुछ स्टेट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि हमारी जो एवरी डेली ट्रेडेड वैल्यू है वो अराउंड 80% है ऑफ शरिया मार्केट, और जो हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 65% मार्केट कैपिटलाइजेशन शरिया कंप्लाइंट है, और मोर देन 50% जो स्टॉक्स है हमारे जो ट्रेड हो रहे हैं वो शरिया कंप्लाइंट है. अच्छा, अब ETFs के बारे में. ETFs के बारे में आपको थोड़ा सा जर्नल पता होगा कि ETFs एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें आप जो है बास्केट ऑफ सिक्योरिटी डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, बाय या सेल इन द मार्केट आवर्स, और ये फुल डे ट्रेड हो रही होती है, और आप इसको बाय सेल कर सकते हैं जब चाहे नॉर्मल ब्रोकर अकाउंट ओपन करके. तो इसमें ये है कि इसमें आप जब एक सिक्योरिटी बाय करते हैं तो आपको जो एक्सपोजर मिलता है वो अंडरलाइंग जो उसमें सिक्योरिटीज होती हैं उसका मिलता है, और अंडरलाइंग सिक्योरिटीज जो सिलेक्ट हो रही होती हैं उसका डिफाइंड क्राइटेरिया होता है और पैरामीटर होता है. अब इंटरनेशनल मार्केट्स. जी जी. Can let's just take a 1 minute break for Azan. ओके. अजान हो गई है. जी प्लीज कंटिन्यू. तो हमारी जो ETF रिलेटेड प्रोडक्ट है वो नॉर्मली एक्टिव
एक्टिवली मैनेज भी होती हैं और पैसिवली भी होती हैं, लेकिन जो हमारी मार्केट है उसमें वो पैसिवली मैनेज प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और हमारे पास टोटल अभी जो है 9 ETFs हैं, जो मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया था, जिसमें से 8 इक्विटी ETFs हैं। तो उसमें डिफरेंस जो है, आप अगर नॉर्मल म्यूचुअल फंड और ETF में अगर डिफरेंस देखें तो म्यूचुअल फंड थोड़े से ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, लेकिन जो ETF हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो लेस कॉस्टली हैं, क्योंकि इसमें लोअर मैनेजमेंट फीस होती है। और इसमें जो सिर्फ कॉस्ट चार्ज होती है वो नॉर्मल ब्रोकर कमीशन होता है जिसमें चार्ज हो रहा होता है। उसके अलावा इसमें एक एक ये सेपरेट फैक्टर है कि इसमें जो है टैक्स रेट भी लो होता है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनी हुई है ये इसमें इन काइंड डिलीवरी हो रही होती है। तो एक्चुअल में जो इस प्रोडक्ट है इसमें ये नहीं हो रहा होता कि जो है बाइंग सेलिंग बैक पे हो रही हो, क्योंकि इसमें अलग अलग, लेकिन मैं इतनी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। इसमें के पीछे ऑथराइज पार्टिसिपेंट मार्केट मेकर पूरा एक मैकेनिज्म है जो इसमें वर्क करता है, और फिर जो एंड यूजर है वो जाके डायरेक्टली यूनिट्स बाय कर सकता है स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से। हमारे पास जैसे मैंने बताया कि अभी जो है ये 6 टाइप इक्विटी के हैं, 2 इस्लामिक के हैं और एक डेट मार्केट का है। और इसमें हर क्या बोलते हैं ETF के बैक पर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट शेयर्स होते हैं, जैसे NIT में 14 है, UBL में 9 है, और ये डिफरेंट अलग अलग स्ट्रेटजीज पे चल रहे होते हैं। जैसे अब अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो इसमें ETFs के रिटर्न आ रहे हैं लास्ट कैलेंडर ईयर 2024 के। तो इसमें अगर आप JS मोमेंटम का देखें तो 152% रिटर्न है। तो इसने मार्केट को बीट किया था, क्योंकि JS मोमेंटम नाम से पता चल रहा है मोमेंटम स्ट्रेटेजी ये अप्लाई करता है कि जो क्या बोलते हैं इक्विटी शेयर्स बढ़ रहे होते हैं उसमें ये इन्वेस्ट करते हैं मोमेंटम में, और फिर मंथ ऑन मंथ पे ये अपने आप को रीबैलेंस कर रहा होता है, मतलब ये बाय कर रहा होता है वो शेयर्स जिसकी हिस्ट्री लास्ट 2 मंथ्स में जिसने गेन किया होता है, और ये इसको बाय करके अपने पोर्टफोलियो में 1 मंथ रखता है, और फिर जो भी प्राइस रिटर्न इसमें आता है या डिविडेंड आता है वो इसके जो भी यूनिट होल्डर्स होते हैं उनको मिल जाता है। और प्राइस का इम्पैक्ट जो प्राइस में नजर आया था, इसकी वजह से इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट हुई है लास्ट कैलेंडर ईयर में। और अगर ETF रिलेटेड आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा वेब पेज है psx.com.pk। इसमें अंडर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टैब यहाँ पर लेफ्ट पे आप देख रहे होंगे ETF है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको और ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी कि ETFs और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है और ETF प्रोडक्ट किस तरह काम करती है स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, थैंक यू। और आपकी कोई भी क्यूरीज हो तो बिल्कुल मैं अवेलेबल हूँ आंसर करने के लिए। ठीक है। अच्छा और Aman, maybe you can answer to this question which is very basic for us, but a user is asking कि थोड़ा सा हमें बताइए कि KSE 100 और KMI क्या है, इस थोड़ी सी इंडेक्स के बारे में इनको बेसिक अल्फाज में जी अगर आप थोड़ा समझा सकें। जी मैं बताता हूँ। ये KC 100 इंडेक्स जो है हमारा बेसिकली ये जो है ये ऐसा इंडेक्स है जिसमें ओवरऑल सारे हमारे सेक्टर रिप्रेजेंट होते हैं। इसका बेसिकली क्राइटेरिया ये है कि ये बेंचमार्क इंडेक्स है इंडस्ट्री का। तो ये जो है सब डिफरेंट सेक्टर्स मतलब डिफरेंट इंडस्ट्री में ये फॉलो हो रहा होता है, क्योंकि इसमें जो है ओवरऑल 100 सिक्योरिटीज होती हैं, जिसमें से 36 जो है सेक्टर बेस्ड सिलेक्ट होती हैं, और 64 जो सिक्योरिटीज है मार्केट कैप की बेसिस पर सिलेक्ट हो रही होती हैं। तो Right. हाईएस्ट फ्री फ्लोट के हिसाब से सिलेक्ट होके सिक्योरिटीज आती हैं, और इसका रिटर्न जो है ना प्राइस रिटर्न और टोटल रिटर्न इसमें कैप्चर हो रहा होता है। और KMI 30 का KMI 30 था, KMI ऑल था। KMI all KMI I ऑल think। बेसिकली इसमें डिफरेंस ये है कि KMI ऑल जो हमारे इंडेक्स बना हुआ है वो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स पे बना हुआ है इंडेक्स, और KC 100 जो है फ्री फ्लोट बेस्ड है। तो KMI ऑल जो है शरिया बेस्ड है, और इसमें सिर्फ शरिया बेस्ड सिक्योरिटीज ट्रेड होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अदनान साहब, आई थिंक वांटेड टू हमाद एंड अदनान वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन। प्लीज आप कमेंट्स वाले सेक्शन में, मैसेजेस वाले सेक्शन में प्लीज अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर दीजिए। हम सारे सवालों के जवाब आपको वन बाय वन देते जा रहे हैं। उन लोगों से मैं फिर दोबारा क्लैरिफाई कर दूं जो लोग कह रहे हैं कि लिंक आपको मौसूल हुआ लेकिन आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंपटीशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। हमने आपको एडवांस में लिंक इसलिए भेजा है ताकि आपके पास मौजूद हो, ताकि जब कंपटीशन स्टार्ट हो तो ऐसा ना हो कि आप लॉगिन ना कर पाए उस वक्त। तो 12 तारीख को आपने इसमें फर्स्ट टाइम लॉगिन करना है और आप उसमें इंशाल्लाह विदाउट एनी डिफिकल्टीज लॉगिन कर पाएंगे और कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर। स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों को एक लिंक
जो कि शेयर किया गया है, जिसपे आप सब लोग ट्राई कर रहे हैं लॉगिन करने का, जो कि बिफोर द May 12 ये पॉसिबल नहीं है, जिसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो वहां से मैं स्टार्ट लिखता हूँ। मैंने एक डमी लिंक आपके सामने पेश करूंगा और उसी का डमी यूजर्स के साथ, जिसमें आप वॉक थ्रू है पूरा कि आपको उस लिंक के बाद कैसे है आपको लॉग इन करना होगा। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। ठीक है, लॉगिन करिए। इस यूआरएल के बाद आपको ये स्क्रीन नजर आएगी। इसके बाद आपने अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो हम लोगों ने शेयर किए हैं PSX की तरफ से जो आपको मिले हैं, वो यहाँ एंटर करेंगे आप। यूजर आईडी एंड पासवर्ड। अच्छा, आपके सामने एक पॉपअप आएगा, वेरीफाई योर आइडेंटिटी। इसमें आपने अपना NIC प्लेस करना है, जो कि रियल NIC होना चाहिए। अभी मैं एक डेमो NIC इसमें प्लेस कर रहा हूँ, एक डमी। इसको सेव कर देते हैं। नाउ यू कैन सी द डैशबोर्ड, राइट। अच्छा, इस यूजर में मैं ऑलरेडी एक ट्रेड कर चुका हूं, लेकिन आपको मैं फिर भी वॉक थ्रू स्टार्ट से लेता हूं। इसमें आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड पे आपको आपकी पोर्टफोलियो नजर आएगी, जिसका टाइटल अभी जो आपको नजर आ रहा है, बैटल ऑफ द बुल्स वेबिनार डेमो। ये आपका टाइटल बैटल ऑफ द बुल्स होगा। इसके राइट साइड पे आप देखें तो 3 आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, मेक ट्रेड, व्यू लीडर बोर्ड और रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छा, लीडर बोर्ड में आप अपनी पोजीशंस देख सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने क्लिक किया, आप देखें कि इस यूजर से मैं अभी एंटर्ड हूँ, लॉग इन हूँ, तो मुझे वो रैंक बता रहा है और बाकी यूजर्स की भी टॉप 10 जितनी भी रैंक्स हैं वो बता रहे हैं। इससे आपको रैंकिंग आपकी पता चलती रहेगी, जिसे हम कहते हैं लीडर बोर्ड, राइट। नेक्स्ट चलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस पे। इसमें आपको सिंपली जितने भी रूल्स हैं PSX के, वो आपको यहाँ अवेलेबल होंगे कि इस कंपटीशन का बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं क्या। ये भी पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जब आप अपने एक्चुअल बैटल ऑफ द बुल्स के सिस्टम में लॉग इन होंगे। अच्छा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है मेक ट्रेड का ऑप्शन। इसको हम क्लिक करते हैं, आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म होंगी वो इस बटन के थ्रू होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये स्क्रीन नजर आ रही है, जिसमें कि आप, जो कि इस सिस्टम का USP है बेसिकली कि वर्चुअल मनी के साथ रियल प्राइसेस मौजूद है यहाँ पे। तो सपोज मैं PSO खरीदना चाहता हूँ, बाय करना चाहता हूँ, आप देखिए ऊपर बाय एंड सेल 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट। मैं PSO खरीदना चाहता हूँ, यहाँ मैंने PS लिखा तो मेरे सामने लिस्ट आ गई है। आप कोई भी कंपनी, वो कंपनी जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही है कि आप किस डेट में ट्रेड कर रहे हैं। ये लॉक्ड है। ये क्यों लॉक्ड है? बेसिकली इससे यूजर का कोई कंसर्न नहीं है। यूजर का कंसर्न है स्टॉक क्वांटिटी से, यहाँ पर आप कितने शेयर्स बाय करना चाहते हैं। नीचे आप देखेंगे स्टॉक क्वांटिटी की बेस पे ये रेट्स चेंज होंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं 50 शेयर लेना चाहता हूँ या 500 लेना चाहता हूँ, तो उसकी कॉस्ट भी आपको पता चल रही है, साथ साथ ब्रोकरेज फी भी पता चल रही है, जो कि एक स्टैंडर्ड है जो कि इस पे अप्लाई होती है, सेल पे भी बाय पे भी। अच्छा, बहुत सारे लोग शायद ये क्वेश्चन भी करें कि बाय सेल दोनों पे तो नहीं होती, रियल ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ बाय पे होती है। तो रियल ट्रेडिंग में देखें बहुत सारे टूल्स और फीचर्स होते हैं जो कि इस सिस्टम में सिर्फ इसीलिए कि बिगनर्स अपना इनिशिएटिव जो है ये इसीलिए लिया गया है कि बिगनर्स उसको सीख सकें लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहाँ क्यूट कैंसिल बहुत सारी टर्म्स यूज होती हैं जो कि इस सिस्टम में नहीं इनकॉर्पोरेट की गई। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कि मैंने 500 क्वांटिटी के शेयर्स लिए और मैं इसको बाय कर लेता हूँ। आपको ये नजर आ रही है कॉस्ट इसकी कितनी हुई, ब्रोकरेज कमीशन कितना है और टोटल कॉस्ट क्या पड़ी मुझे शेयर की। अब आप देखिए डैशबोर्ड पे चेंजेस आपके सामने नजर आ रहे हैं। ये अगर आप देखें राइट साइड पे मेरे, कि मैंने किस सेक्टर में काम किया, ये बता रहा है ऑयल एंड गैस में किया, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ एक ट्रेड की है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको उसी वक्त इसका इम्पैक्ट नजर आए। आप, क्योंकि ऑलवेज स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्टमेंट जो है वो की जाती है, रादर देन
शॉर्ट टर्म बेसिस पे। अच्छा रायवी, ये बताते चले बहुत सारे लोग वही सवाल पूछ रहे हैं कि हम लॉगिन नहीं कर पा रहे या हमें लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं मिले, तो उसका एक दफा मजीद इनको प्लीज बता दीजिए। श्योर। अच्छा देखिए, एक तो बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मई 12 से पहले आप लॉग इन नहीं कर सकते। और जिस अगर किसी के पास ये इशू आ रहा है कि वो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड था रेगुलर पोर्टफोलियो यूज करने के हवाले से, तो और वो कंपटीशन में भी दाखिल हो गए हैं, तो उनको ये इशू फेस हो रहा होगा फॉरगेट पासवर्ड का। तो फॉरगेट पासवर्ड में आप जाके उसमें एंटर करें, और ऑब्वियसली जब मई 12 में आप लॉग इन होंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। इनफैक्ट कोई फिर भी कोई इशू आता है तो आप info@psec.com.pk इस पे अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। आगे बढ़े मेरे ख्याल से। प्लीज। अच्छा अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि अभी आपको ये ब्लैंक नजर आ रहा है डैशबोर्ड, जिसमें कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। इम्पैक्ट इसीलिए होगा कि जब मार्केट क्लोज होगी और 1 से 2 दिन गुजरेंगे तो आपको यहाँ पे चार्ट भी नजर आएगा। ऑब्वियसली मैं आपको इसका जो एक वर्किंग डेमो जो है वो भी दिखा देता हूँ एक लॉगिन करके, जिसमें आपको इम्पैक्ट नजर आएगा बकायदा। अच्छा, डैशबोर्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं कि इसमें आप देखिएगा कि नीचे समरी आ रही है आपके पास और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। आप जो कुछ भी खरीदेंगे बेचेंगे उसमें स्टॉक्स में ये समरी आपके पास मौजूद है। ये चार्जर चाहिए, राइट। तो ये देखिए आपकी क्वांटिटी कितनी ली है आपने, एवरेज कॉस्ट क्या थी उसकी, टोटल कॉस्ट क्या बनी, करंट प्राइस क्या थी उस शेयर की, करंट वैल्यू क्या बनी, आपने रिटर्न क्या लिया ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। गेन और लॉस क्या किया। अच्छा, इसी पे बेस करता है आपका ये टॉप जो टुडेज रिटर्न हेडर आपका नजर आ रहा है, टुडेज रिटर्न, टुडेज टोटल रिटर्न, टुडेज रिटर्न, मार्केट वैल्यू, कैश, आपके पास कैश कितना बचा। हम एक बाय और कर लेते हैं, एक ट्रेड और कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी चीजें, और किसी और सेक्टर में कर लेते हैं। हमने ऑयल एंड गैस के सेक्टर में लिया था, हम टेक्सटाइल का कोई ले लेते हैं, अल अब्बास शुगर ले लेते हैं, या बैंक ले लेते हैं। अब देखिए आपके सामने नजर आ रहा है कि इस डोनट का कलर जो है, आपका डोनट चार्ट जो है इसका ग्रीन एंड ब्लू है। तो ये सेक्टर वाइज आपकी डाइवर्सिफिकेशन बता रहा है। कोशिश कीजिएगा कि जितनी डाइवर्सिफिकेशन ला सकें अपनी पोर्टफोलियो को बिल्ड करने में और अपनी स्ट्रैटेजीज को बिल्ड करने में, ताकि आप टॉप प्लेयर जो है बन सकें। तो यहाँ तक तो ये चीजें मौजूद थी, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, समरी। इसी तरह अब अगर आपको सेल करना है तो सेम आप मेक ट्रेड में जाएंगे, और यहाँ पे मैं कहता हूँ पीएसओ जो मैंने लिया था ये 550 मेरे पास शेयर्स मौजूद थे। मैं इसको कहता हूँ कि 50 शेयर्स जो है वो मुझे सेल करने हैं। अच्छा, अब आपको यहाँ पे गेन एंड लॉस भी पता चल रहा है अभी, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट क्रैश है, और इसमें आपको इम्पैक्ट अभी लॉस में नजर आ रहा है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग जब इसके साथ जो है वो वर्क अराउंड रखेंगे अपना, तो इसके अंदर इम्पैक्ट आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैं इसमें से अभी आपको ट्राई करता हूँ कि अगर आपको एक जो रियल जो रेगुलर पोर्टफोलियो यूज करने वाले लोग हैं उस पोर्टफोलियो में अगर हम जाते हैं। अच्छा, फॉरगेट पासवर्ड का भी मैं यहीं आपको साथ साथ बताते चले जाता हूँ कि आप इस पे पोर्टफोलियो पे क्लिक कीजिए, माय पोर्टफोलियो पे लॉग आउट करें पहले यहाँ से। यहाँ से लॉग आउट कीजिए, और जो जो हजरात, खवातीन और हजरात फील कर रहे हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा है, पासवर्ड हम रीसेट नहीं कर सकते अपना, तो ये यहाँ पे मौजूद है लिंक फॉरगेट फॉरगेट पासवर्ड का। इस पे क्लिक कीजिए, सिंपली अपना ईमेल एड्रेस टाइप कीजिए और सबमिट कर दीजिए, तो आपको आपका पासवर्ड रिकवर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक इसका ठीक है, नहीं आई थिंक इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ओवरव्यू। वैसे यहाँ पे हमारे पास है नहीं। ये एक चीज है, ये आप मीनवाइल देख लीजिए। वैसे जवाब साहब, देयर इज अ क्वेश्चन कि व्हाट इज द लेवरेज अवेलेबल फॉर फ्यूचर्स, इफ यू वुड लाइक टू आंसर टू दैट।
What's the leverage available for futures? फ्यूचर्स के ट्रेड जैसे नाम से जाहिर है, हमारे पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 3 ड्यूरेशन के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किए जाते हैं सेलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर, जो कि लिक्विड हैं। इस वक्त फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें तकरीबन 100 से ज्यादा कंपनीज अवेलेबल हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज है वो 500 शेयर्स होता है। यानी यूँ समझिए कि अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं तो आप एक्सपोजर ले रहे हैं 500 शेयर्स के अंदर, राइट। नाउ दैट इज द टोटल, उसकी जो भी वैल्यू बनेगी दैट इज द टोटल नोशनल। और उसको ट्रेड करने के लिए आपको एक सर्टन इट डिपेंड्स ऑन द कमर्शियल टर्म्स विद द ब्रोकर हाउ मच मार्जिन इज एक्सेप्टेबल। लेकिन सर्टनली चूंकि इसकी सेटलमेंट फौरी तौर पर नहीं हो रही होती, तो with certain amount of deposit you can trade DFC। आसान लफ्जों में ये कह लीजिए कि अगर उस नोशनल की वैल्यू 100 रुपए है तो आप 50 रुपए के डिपॉजिट से उसमें ट्रेड कर लेते हैं। सो दैट जब सेटलमेंट होगी तो 50 रुपए तो आपके ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ कोलेटरल पड़े हुए हैं, और बाकी 50 जो है वो सेटलमेंट उसको कर लेंगे। दैट्स हाउ द लेवरेज वर्क्स। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा आपने एक सवाल पूछा है कि क्या फ्यूचर्स ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। बैटल ऑफ द बुल्स में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा आपने पूछा कि क्या गोल्ड में ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो किसी और एसेट क्लास में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एक्विटी में हम आपको ट्रेडिंग करने का ऑप्शन यहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में प्रोवाइड कर रहे हैं। बी इट द बैटल ऑफ द बुल्स वर्चुअल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कंपटीशन, या इफ इट्स द एक्चुअल लाइव इन्वायरमेंट जहाँ पे आप अपने ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खुलवा के रियल मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो यूजिंग एक्चुअल मनी। अच्छा, नेक्स्ट अप वी वुड लाइक राहिल साहब टू शेयर हिज स्क्रीन विद अस, ताकि हम एक डेमो पोर्टफोलियो देख सकें। ऐसा पोर्टफोलियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो कि कुछ अरसे यूज किया गया है इस अकाउंट को, जहाँ पे कुछ परचेजिंग, सेलिंग और ये सब एक्टिविटीज की गई है। उसके नतीजे में एक ग्राफ जनरेट हुआ है। इससे पहले हम लोग क्योंकि बात कर रहे थे कि कोई नया अकाउंट बनता है तो वो आपको ब्लैंक मिलेगा, ना वहाँ पे कोई पाई चार्ट आएगा, ना वहाँ पे कोई ग्राफ आएगा, ना ही कोई हिस्ट्री आएगी। बट ये एक एक्टिव अकाउंट है जहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। राइट, प्लीज इफ यू कैन टेक देम फॉरवर्ड। शेयर। अच्छा, इस पोर्टफोलियो में आप देख रहे हैं कि टुडेज रिटर्न भी आपको नजर आ रहा है, जो कि ऑब्वियसली माइनस में है, और टोटल रिटर्न आपके सामने है। और आप डाइवर्सिफिकेशन की जहाँ मैं बात कर रहा था, तो मल्टीपल सेक्टर्स में देखें कि ये अगर हम सेक्टर चार्ट इसका देखें बाय सेक्टर, 2 ऑप्शंस हैं। फर्टिलाइजर पे बहुत ज़्यादा इस यूज़र ने जो है वो काम किया, और इसके बाद टेक्सटाइल है, इसके बाद ETF से देखें 20% जो है वो ETF पे काम किया हुआ है इन्होंने। तो और ये आप इसका जो इम्पैक्ट है वो भी देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा ड्रैग डाउन करेंगे तो आपको इसकी समरी भी नज़र आ रही है। और किसी भी सिंबल पे देखें। अच्छा, एक चीज़ और है कि ऑब्वियसली हर चीज़ के लिए स्टडी ज़रूरी है। आप चाहे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो हम थोड़ा सा रिसर्च करते हैं कि किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ पे, और ये कोई भी स्टडी हो, फंडामेंटल्स किसी चीज़ के भी लिए, तो हमें भी ये ट्राई करना चाहिए कि हम इन चीज़ों को स्टडी करें, और तभी हम इसको अपने लिए फ्रूटफुल बना सकते हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे somebody has mentioned कि the person has spread their eggs in all baskets। So basically ये कोई सजेशन या एडवाइस देने के लिए ये पोर्टफोलियो नहीं है।
ये एक रैंडमली चोजन शेयर हैं जो हम डिफरेंट प्रेजेंटेशंस में एज अ डेमो प्रोफाइल यूज करते हैं। सो ये ना ही सजेशन है कि आपने यहाँ से देख के कोई शेयर खरीदने हैं, ना ही हम ये कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे शेयर खरीदे हुए हैं तो ये एक बहुत अच्छा, बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है या बहुत ही स्पेसिफिक पोर्टफोलियो है। दिस इज नाइदर। ठीक है, ये एक आप समझ लीजिए रैंडम टाइप पे चूज किए गए रैंडम शेयर्स हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बनाया है, ताकि आप हिस्ट्री वगैरह को देख के समझ सकें कि कितने अरसे में कौन से शेयर ने क्या प्रॉफिट या लॉस दिया। ये सिर्फ इस बेसिस पे है, ये आपको हम एडवाइस नहीं कर रहे हैं कि आप इसको देख के फॉलो करना है। ये सिर्फ और सिर्फ एक डेमो प्रोफाइल है, इससे ज्यादा ये कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ सैंपल के तौर पे यूज किया जा रहा है। बिफोर कंक्लूडिंग बस एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा बल्कि सबसे कि एक बहुत अच्छे स्कॉलर कह गए कि जुगनू अपने हिस्से का उजाला कर जाता है। तो देखें, पीएसएफ की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है और ऐसा कभी किसी जगह हिस्ट्री में नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम है कि आपको एजुकेट भी किया जाता है, ट्रेन भी किया जा रहा है और इन सब चीज़ों के लिए आपके पास इनामात भी है। तो अब एक दिया हमने जला दिया है, आगे आप लोगों ने इसमें आगे बढ़ना है, स्टडी करना है इस चीज़ को। दैट्स इट। थैंक Thank यू। you very much, Rahil Saab. Now we'll move forward towards Maha, who will be taking us through the platform that is called the Stock Intel. She is the VP of the organization, and they have developed this amazing platform. मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा. I'll just directly take you to the Maha. Please begin your presentation. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फहद। सो बेसिकली अभी जितनी भी डिस्कशन हुई, सारे पार्टिसिपेंट्स ने आप लोगों को गाइड किया कि यू हैव टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो एंड व्हाट आर दी फैक्टर्स व्हिच यू शुड कंसिडर डूइंग इट। जैसे जवाद साहब ने मेंशन किया कि आपको न्यूज़ देखनी होती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने होते हैं, आप एनालिसिस करें। इसी तरह राहील साहब ने मेंशन किया कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। अब ये सब कुछ होगा कैसे और इसमें आप रिसर्च कैसे करेंगे? अभी चैट में किसी ने लिखा हुआ था कि न्यूज़ वगैरह हम देख रहे होते हैं, तो वो हम कहाँ से देखें? तो द पर्पस ऑफ गिविंग दिस प्लेटफॉर्म अलोंग विद द कंपटीशन इज कि आपके पास एक इस तरह का प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन हो। आपके पास न्यूज़ हो, कंपनी का सारा फाइनेंशियल डेटा हो, फंडामेंटल हो, टेक्निकल्स पे अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो वो हो, और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना कैसे है उसमें आपके पास सारे टूल्स हो जिससे आप ये कर सकें। सो कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले एनालिसिस होता है, कंपैरिजन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आप इस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। तो आई विल जस्ट शेयर माई स्क्रीन एंड आई विल टेक यू थ्रू इट। सो आप लोगों के पास यू कैन जस्ट गो टू stockintel.com and you can sign up. साइन अप का प्रोसेस इज वेरी सिंपल। आप नाम, अपना फ़ोन नंबर और पासवर्ड वगैरह ऐड करेंगे और आप यू विल गेट एन OTP और आप रजिस्टर कर लेंगे। वंस दिस इज डन, यू कैन साइन इन। लेट मी जस्ट साइन इन यू। And then you land on the dashboard. अब this dashboard is real time. अभी तो मार्केट बंद है, बट मार्केट आवर्स में आपको यहाँ पे इंडेक्स की रियल टाइम प्राइसेस चेंज और वो सब चीज़ें नज़र आ रही होंगी। देन यू हैव के आज के दिन में प्राइस गेनर्स कौन से हैं और लूजर्स कौन से हैं, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस में लग रही है, पॉइंट्स किस में लग रहे हैं, जो भी कोई कंपनी के अनाउंसमेंट्स आ रही हैं। सो अर्निंग्स किसी ने अगर अनाउंस की हैं, सो यू गेट इट हियर। बोर्ड मीटिंग्स किसकी स्केड्यूल्ड हैं, यू गेट अ कैलेंडर फॉर दैट। पे आउट्स किसके एक्सपेक्टेड हैं, वो भी आपको यहीं पे नज़र आ रहे होते हैं। एंड देन ऑल दी अनाउंसमेंट्स जो भी अनाउंस हो रही होती हैं। देन जो क्वेश्चन था कि न्यूज़ वगैरह कैसे आ रही होगी, तो आपके पास न्यूज़ भी यहीं पे आ रही होती है। जो भी मेजर न्यूज़ होगी यू विल गेट इट ओवर हियर। नेक्स्ट सेक्टर्स, क्या आज सेक्टर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड देन यू गॉट रिसर्च रिपोर्ट्स, जो भी ब्रोकरेज हाउसेस रिसर्च रिपोर्ट जो पब्लिश कर रहे होते हैं वो आपके पास यहाँ पे अपडेट हो जाती है। नाउ what is actually, how can you actually use this tool is कि आपने किसी भी कंपनी पे रिसर्च करनी है तो यू कैन जस्ट गो टू दैट सिंगल कंपनी। तो अगर मैं eFert पे जाती हूँ तो मेरे पास eFert की आज की प्राइसेस आ गई। अब मार्केट क्योंकि बंद हो गई है तो इट्स टेलिंग कि 3 घंटे पहले जो है वो eFert की ट्रेडिंग प्राइस, ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो कल से ट्वाइस हो गई थी।
तो जो कल उसकी वॉल्यूम थी उससे इंक्रीज हो गई है प्राइस। देन यू हैव अ चार्ट, आप ये भी देख सकते हैं कि अलोंग द पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये देखें, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 2014, सो 2014 से आज तक ईफर्ट में क्या ट्रेंड रहा है। देन यू हैव एन ओवरव्यू ऑफ द फाइनेंशियल्स कि इसमें प्रॉफिट में ग्रोथ आई है 2016 से अब तक कितनी ग्रोथ आई है। Then you have a peer comparison, some basics about the company, उसकी news, announcements, technical indicators. This is just an overview. अगर आप कोई भी चीज़ in depth देखना चाहते हैं, if you want to do a fundamental analysis of the company, तो you go to performance और यहाँ पे आप देखें आपके पास सारा ratio analysis है। तो profitability के क्या trends हैं, investor ratios, dividend yield कैसी है इसकी, ये dividend कितने देते हैं या नहीं देते हैं, valuations, then the capital structure, liquidity and efficiency। तो हर तरह के जो फंडामेंटल रेशियोज हैं जो एनालिसिस में यूज होते हैं ये आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है यहाँ पे। इफ यू स्टिल वांट टू डिग डीप इनटू द कंपनी फाइनेंशियल्स तो आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हैं। सो यू कैन जस्ट चेक के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है या क्वार्टरली बेसिस पे ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखना चाहते हैं परसेंटेज टर्म्स में तो वो भी आपके पास यहाँ पे आ रही है। सो द सेम गोज फॉर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सारी जो मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे आपके पास इन सिंगल व्यू अवेलेबल है। अगर आप इससे भी ज्यादा कोई चीज देखना चाहते हैं जस्ट टू गो इनटू द नोट्स या कोई इस तरह की चीज, तो आपके पास यहाँ पे पीडीएफ भी है। सो यू हैव द एनुअल रिपोर्ट, यू हैव द क्वार्टरली रिपोर्ट, एवरीथिंग अवेलेबल हियर। देन रिसर्च, इस कंपनी पे सिर्फ आज नहीं हिस्टोरिकली ब्रोकरेज हाउसेस के क्या व्यूज हैं। तो अगर आप देखें तो ये परसों जो है वो बीएमए ने एक फर्टिलाइजर सेक्टर पे रिपोर्ट लिखी है जो कि ऑब्वियसली सेक्टर में ईफर्ट भी आता है तो उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। फिर ईफर्ट के बारे में फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट दी थी 29 अप्रैल को। So you get all the reports which are written by major brokerage houses on this company, which can help you कि उनका क्या view है on this company. Then the news which is relating to this company. So 16 days पहले की eFert पे news आई थी, जैसे कोई और news आएगी which is about eFert तो वो भी यहाँ पे available हो जाएगी। Now this is one way of analysis कि आप कंपनी के fundamentals और financials पे analysis करें। Another way of doing analysis is टेक्निकल चार्टिंग। तो यहाँ पे आपके पास रियल टाइम टेक्निकल चार्टिंग भी अवेलेबल है। Thank you, Maha, for sharing a detailed demo of the platform Stock and Tell. I hope all the participants who are watching us today and those who would be watching the recording of this webinar later on will make the most out of it. And I would also like to thank the rest of the speakers who joined us today to share the information that is needed for all the participants throughout the 3 months time of this battle. And a big thank you to all the participants who joined us today and asked their questions and took interest. I hope you will have a great time battling it out in the virtual trading arena. And if you have any more questions that you would want to ask us, please drop us an email at info@psx.com.pk and our team will get back to you soon. Thank you very much and Allah Hafiz.